Sushil Modi, right at the outset, let me start by asking you about this entire buzz which is happening in Bihar, that there is a phone conversation of someone who used to be a minister in your government at the center and ministers of the Nitish government कि आप लोग नीतीश बाबू की सरकार गिराने की कोशिश कर रहे थे और ये टेप्स अब पूरे बिहार में एक घर घर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। क्या आप नीतीश बाबू की सरकार गिराने की कोशिश कर रहे थे? This is 200% false. This is a white lie. ये सरासर झूठ है। इतना बड़ा झूठ कोई दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। And why will break JDU? Even if we break JDU, how we are going to form government in Bihar? Because we are only 76. So we require another 46 MLAs to form a government in Bihar. So how we will form government? Even if we break JDU, then how a government is formed in Bihar? Why will break JDU? So देखिए जब गठबंधन तोड़ना था, they are finding excuse in RCP Singh, in Chirag Paswan, that BJP wanted defection. And see, Chirag Paswan episode is 19 months back. And now they have realized after 19 months that BJP planted Chirag Paswan. And you lost the elections because the popularity of your leader went down. आपके जो नेता थे उनकी जो लोकप्रियता थी वो घटती जा रही थी, उनका ग्राफ नीचे गिर रहा था। अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते, you would not have won even 45 seats. It is only because of Narendra Modi's popularity and of his aggressive campaign in Bihar that BJP, JDU could win 45 seats. Sir, can I just quickly interject, because you mentioned RCP Singh. This is the person, Mr. RCP Singh, who the RJD, JDU are saying was used by the BJP to lure JDU MLAs. What do you say to that? No, I've already answered your allegation, your question, that we require 46 MLAs to form a government in Bihar. So even we could have, even JDU could have been broken, then also we could not form government in Bihar. So there is no question of breaking JDU. Why will break our alliance with Nitish Kumar? We had such a good relation with Nitish Kumar. I worked with him for 13 years, with Arun Jaitley, with everybody. And then why he came back with Narendra Modi? Once upon a time he broke the alliance with the BJP only because of Narendra Modi. And after 3-4 years, again he joined hand with the Narendra Modi. See, it was the greatness of Narendra Modi that he regularly talked to Nitish Kumar in the last 1.5 years. He must have talked more than a dozen times with the Nitish Kumar. Amit Shah used to talk to Nitish Kumar. Nadda ji ne वो telephone क्या करते थे? धर्मेंद्र प्रधान गए. So why, what more comfort you want? लेकिन मुझे ये लगता है, जैसा मैंने आज दिन में भी कहा कि नीतीश wanted to become something much more than Chief Minister of Bihar. So two of his colleagues, his senior colleagues, they met BJP leaders and said that अगर संभव हो तो नीतीश जी को वाइस प्रेसिडेंट बना दीजिए. And when BJP said that it is not possible to make Nitish Kumar as vice president, then I think he has some ambition to become prime minister, becoming president of India, some high ambition. So keeping very interesting, and that's an important piece of information that you're giving us, Mr. Modi, that people from the JDU approached the BJP to make Nitish ji vice president. Who are these people? Chandrasekhar Charan Singh banna hai kya? No, so it will not be good to name anybody. I don't want to expose anybody, but I can vow that this is 100% true. And I was told by ministers that फलाना मंत्री मेरे पास एक बार दो बार बातचीत किया कि make some effort that Nitish Kumar can get an graceful exit from Bihar politics. So that may be, but I don't say that because of this only, because BJP refused. That's why Nitish Kumar broke this alliance. This is I won't say this, but he is betrayed. And this mandate was not for Nitish Kumar. This mandate was for Narendra Modi. If Narendra Modi would not have campaigned for Nitish Kumar, then Nitish Kumar would have reduced only 25-30 seats. The entire EBC vote bank has shifted to BJP. So Nitish ji, you should not be in illusion. Okay, Mr. Sushil Modi, really appreciate you speaking to us. It'll be interesting. We've been hearing a lot of recriminations
allegations from the BJP camp. It will be interesting to hear what the view is now from the other side of the fence. As now is Member of Parliament, Mr. Shatrughan Sinha, somebody who is a Member of Parliament from Asansol but knows Bihar very, very closely. He has been a politician from Bihar. Mr. Sinha, first of all, what do you say to cynics who think that this is going to be a short-lived government, will not even last out the rest of the 3 years term? I think this statement is coming out of their desperation or frustration. Grapes are sour, खट्टे अंगूर कौन खाए, वो वाली बात, because just he has left you, he has taken the Nitish Kumar along with the dashing, dynamic and man of all seasons, young man, the Tejasvi Yadav. He has taken the right decision at the right time in the right direction. So people are naturally taken back, they are in awe and they're going through shock therapy, and that's why these kind of a statement coming out. But today when Mr. Nitish Kumar was taking oath, the BJP was protesting about a dhokha that has been done. The mandate that happened in 2020 was in the name of Mr. Modi. Oh, I didn't know that. Was it in the name of Mr. Modi? Oh, that's what they say. Okay, I will not go for that. I'll just go what they have said, that dhokha hua hai. What dhokha? Dhokha was, why did they join Nitish Kumar in the first place? Didn't our Honorable Prime Minister call him JDU party was the Janta ka Utpidan or Nyay ki party, something like that? Didn't he ask for the DNA of Nitish Kumar? Nitish Kumar, didn't he call him Bharatiya Janata Party? Didn't he call Bharatiya Janata Party बड़का झूठा पार्टी? तो ये सब तो चलता रहता है ना पार्टी पॉलिटिक्स में. आज की पॉलिटिक्स में आई वाज इंस्पायर्ड बाय जयप्रकाश नारायण. I came into politics under my social obligation, but I thought I was coming into healthy politics. अब कहाँ है, हमाम में सब नंगे हैं चारों तरफ से. कल कुछ गोवा का मिनिस्टर, you think about the honorable PM, he was made the minister. जनादेश का अपमान बोल रहे हैं, जनादेश का अपमान हो गया बिहार में. What about भारतीय जनता पार्टी? What did they do in Goa? What did they do in Madhya Pradesh? What have they been doing in Maharashtra? And over in Bihar also, I know through my very confidential sources that money game was being played over here in Bihar also. Some people were contacted, and even some of the ministers are also involved. But chalo, at the moment things are smooth. I'm not going to take their names now. But ये क्या करते हैं? What is right for Peter should be right for Paul. मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू नहीं चलेगा. आपके साथ होते तो आपके साथ सगा है, और जैसे ही आपको छोड़ के आया तो धोखा हो गया और ठगी हो गई. वाह. तो अगर ऐसा था तो you are a very experienced people, you are very experienced people. Why did you join him in the first place? No, sure enough. In politics, nobody can claim to be holier than thou. But if I may just make an interjection, the betrayal is of the people. ये बात तो आप भी मानेंगे कि बहुत वक्त तक बिहार में जो आम आदमी है वो जंगल राज की बात करते रहा है. घोटाले हुए हैं, चारा घोटाले में कन्विक्शन भी हुआ है. लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ये तो आंकड़े बताते हैं that they have improved in the last 10 years. The whole campaign of Nitish Kumar was about the lawlessness under Lalu ji and the RJD in general. Now to bring those people back in power, क्या जनता के साथ धोखा नहीं है? जनता नहीं डरेगी कि अब क्या होगा? देखिए, जो पॉलिटिक्स में कल थे वो आज नहीं है, जो आज हैं वो कल नहीं होंगे. ये पॉलिटिक्स में लगातार परिवर्तन और बदलाव होता रहता है. अभी आपने बात की कि पहले ऐसा था और जंगल राज था, ये वो. अब तो ये सब जंगल राज वगैरह सब एक स्टंटबाजी हो गई, एक ड्रामाबाजी हो गई है. आप सिर्फ कहे जाए, एक नाम अच्छा क्वाइन कर देते हैं, जंगल राज. जंगल कभी कोर्ट से भी कहलवा देते हैं आप, कभी इधर से भी कहा जाता है. उसका क्या आदमी बदलता नहीं है, आदमी एक्सपीरियंस से सुधरता नहीं है, आदमी ठीक नहीं होता. आज कहाँ बिहार में मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ, मेरे पास अभी इतने लोग बैठे हुए हैं
कोई खतरा नहीं, कोई सिक्योरिटी का डर नहीं है, सब कुछ ठीक है यहाँ पे। तो मैं इतना टहलता रहता हूँ, जाता आता रहता हूँ। बहुत चेंजेस होते हैं, होता है चेंजेस। आज नीतीश कुमार जो कल थे उससे आज बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड है। आज वो तेजस्वी यादव जो कल था या कल रहे होंगे उससे आज बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत सीखा उन्होंने लाइफ में। अब ये दोनों आज मिले हैं, ये सब बातें फैलाई जा रही हैं कि साहब ये दोनों आ गए हैं तो ऐसा है, पिछली बार जंगल रहा था, लोग को कुछ नहीं, लोग बहुत खुश हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर मेरे ऊपर मेरी क्रेडिबिलिटी पे, मेरी इंटीग्रिटी पे थोड़ा विश्वास है तो मैं आपको कह सकता हूँ बिहार में जनता बाय एंड लार्ज दे आर फीलिंग वेरी हैप्पी फॉर दिस चेंज। मैं जब भी आया हूँ, मैं तो कल हमारे स्कूल का 187 फाउंडेशन डे था, पटना कॉलेजिएट स्कूल का, उसके लिए आया था। ये महज संयोग था, प्रयोग नहीं था जो मैं कल आया। लेकिन आने के बाद जब लोगों से मिला, देखा, उफ, यूफोरिया है, इतने लोग खुश हैं यहाँ पे। इसीलिए आज आपने बीजेपी, हमारे दोस्तों की पार्टी जो है, आज प्रदर्शन वगैरह हुआ, 100 आदमी भी नहीं गया देखने उनको। आज 100-200 आदमी भी नहीं गए उनको देखने के लिए, मिलने के लिए, क्योंकि लोग बहुत खुश हैं इस परिवर्तन से। और नीतीश कुमार पे निगाहें टिकी हुई हैं अभी भी और शायद आने वाले चंद सालों के लिए भी। क्या आपको लगता है कि आरजेडी बदल गई है? क्योंकि आरजेडी का खुद आपने पॉलिटिक्स देखा है, आप तो खुद रहे हैं पटना से एमपी, आपने खुद इसके बारे में बात भी की है कि एक वक्त होता था कि गाड़ी ऐसे ही उठा के ले जाते थे, जब महिलाएं 7 बजे के बाद घर से नहीं निकलती थी, अनअकम्पनीड तो निकलती ही नहीं थे। मेन यूज्ड टू फील अनसेफ। नहीं, अभी देखिए, आप जब की बात करें, पहले मैंने कहा कि नहीं कहा मुझे याद नहीं, मैंने तो शायद नहीं कभी ऐसा कहा। मैं कभी किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर कभी आक्षेप, कभी अटैक नहीं करता हूं, मैं मुद्दों पे बात करता हूं। लेकिन खैर, जिन लोगों ने भी कहा होगा, अभी बहुत फ़र्क है। अभी तो महिलाएं बाहर घूम सकती हैं रात में। अभी पटना वो पटना नहीं है, बिहार वो बिहार नहीं है जिस बिहार के बारे में हम लोग को बताया गया। और उससे बड़ी बात मैं ये कह रहा हूँ, अगर इनको लगता है कि ये धोखा दिया है, इन्होंने जनादेश का अपमान किया है भारतीय जनता पार्टी को अगर ऐसा महसूस होता है कि इन्होंने, जेडीयू ने ऐसा किया है, तो मैं पहला उससे सवाल ये है कि आप तो इतने अच्छे से उनको तोड़कर लाए, कोशिश की थी, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप तोड़ कर लाए थे, आप जंगल राज वगैरह की बात करके लाए थे, तो इसके ये भी तो पार्टनर थे, तो आपने इनको शामिल क्यों किया? आप इनसे जुड़े क्यों? ये जुड़े और अभी आज आप बोल रहे तो खट्टे अंगूर खट्टे वाली बात हो गई। कहते हैं आप इस तरह बात कर रहे हैं कि अब चूंकि आपके पास नहीं है, जब आपके पास थे तो सगे थे, और आप आपके पास नहीं है तो ठग निकल आए। वाह, ये कहाँ का इंसाफ है? वही मैं कह रहा हूँ। अभी नीतीश कुमार जो हैं वो पूरा देश और खासकर विपक्षी एकता और विपक्ष पार्टी, सारे विपक्ष के लोग उनको बहुत गौर से देख रहे हैं, उनको तरफ बहुत मुखातिब हैं, और इनका भी, इन्होंने जिस तरह से भी फॉलो किया है, जागृति पैदा की है, एक देश में एक जागृति का संचार हुआ है अभी। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये बहुत जो काम किया नीतीश कुमार ने बहुत सराहनीय है, प्रशंसनीय है, और अखिलेश यादव की नज़रों में सही मायनों में बहुत ही अनुकरणीय है। बहुत लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी की अपनी जो एक एम्बिशन है सेंटर में जाने की, दैट इज द ओनली रीजन दैट ही हैज वॉकड आउट। डू यू थिंक दैट एम्बिशन विल बी रियलाइज्ड, एंड नाउ बिकॉज यू आर इन द तृणमूल कांग्रेस, विल योर पार्टी हेल्प हिम रियलाइज दैट एम्बिशन? Will Mamata Banerjee step aside and help Nitish Babu be the face of a joint opposition in the centre at 2024? पहली बात तो आई वुड से, व्हाट इज द हार्म? अगर उनका एम्बिशन है, जो मैं नहीं जानता हूँ, नीतीश बाबू का एम्बिशन है या उनके फॉलोअर्स से देश की अपोजिशन चाहती है कि वो सामने फोर फ्रंट में आए, आई डोंट नो। लेकिन पहली बात है कि अगर उनका अगर ये है, महत्वाकांक्षा है, तो क्या हर्ज है? अगर मोदी जी बन सकते हैं प्रधानमंत्री तो दूसरे कोई नहीं बन सकते हैं। यानी सिर्फ यही नारा चलेगा कि मोदी है तो मुमकिन है, बस। अभी खुद देखिए आप, जिस तरह से मोदी जी के बाकी एलाई छोड़ के जा रहे हैं, ऐसे गए हैं वहाँ से अकाली दल से लेके, शिवसेना से लेके बाकी लोग, और जिस तरह से उन्होंने धन शक्ति का और बाकी अपने शक्तियों का दुरुपयोग किया है,
जिस तरह से गोवा की सरकार तोड़ी, जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार तोड़ी, महाराष्ट्र में वो खेल किया, बिहार में जो खेल कर रहे थे, ऐसे और कई जगह हुआ। तो ऐसा ना हो कि और एलाइज छोड़ के चले, आपका सबसे ट्रस्टवर्दी नीतीश कुमार भी छोड़ के चले गए। तो क्या ऐसा ना हो कि 2024 की घड़ी आते आते मोदी है तो मुमकिन है का नारा खत्म होके कहीं ये ना हो जाए मोदी है तो नामुमकिन है, क्योंकि अब वहाँ भी कुछ लोग और खड़े हो रहे हैं। क्या वहाँ भी खबरें आ रही हैं कि कुछ लोग और भी सामने आ रहे हैं प्रधानमंत्री की रेस में उन रूलिंग पार्टी से। तो कर किसी का कोई भी रेस में आए, इसमें हर्ज क्या है भाई? नहीं, हर्ज कुछ अगर नहीं है, आप कल आप प्रधानमंत्री बनती हैं या मैं प्रधानमंत्री बनता हूं तो क्या हमें हक नहीं है? देखो क्या कल वो कौन होगा लीडर, अल्टीमेट लीडर कौन होगा और अल्टीमेटली फेस कौन होगा प्रधानमंत्री का और अल्टीमेटली प्रधानमंत्री कौन होगा, इसका फैसला तो भारत की जनता और विपक्षी दल मिलकर करेंगे। उसका हम और आप नहीं कर सकते, और वो भी इस घड़ी में मीडिया के ऊपर वो बात नहीं हो सकती है, टेलीविजन के चैनल पे वो बात नहीं हो सकती है। लेकिन ये ज़रूर है कि आज ममता जी तो खैर ट्रू लीडर, द मासेस, द ग्रेट लीडर, द आयरन लेडी, वो तो कमाल है, उनकी फॉलोइंग भी है। मैं खुद देख के अभी आपको कहा मैंने कि अभी चुनाव लड़ने गया था वहाँ आसनसोल से, लैंडस्लाइड विक्ट्री हमारी हुई, 3 लाख से ज़्यादा वोटों से जीता वहाँ पे। एक तो ये भी कारण होगा कि वहाँ EVM मशीन नहीं का बोलबाला नहीं हो सका, तो एक तो जीता। मैं क्रेडिट देता हूँ उसको ममता बनर्जी को, ममता बनर्जी की पॉपुलरिटी को, मैं तृणमूल कांग्रेस के लोगों को, और वहाँ पे अपना आसनसोल की जनता को बहुत थोड़ा मैं अपने आप को भी देता हूँ। हैविंग सेड दिस, लेट मी ऑल्सो टेल यू कि ये जो है फोर फ्रंट में जो लोग आएंगे, ममता जी हैं, हमारे राहुल भी हो सकते हैं, वाई नॉट, ही इज डूइंग क्वाइट वेल, उनकी लार्जेस्ट पार्टी है पार्लियामेंट में भाई, कैसे आप उनको इग्नोर करेंगे? और आज नीतीश कुमार ने बोल्ड एंड ब्यूटीफुल स्टेप लिया है, जिस तरह से बहुत डेयरिंग स्टेप लिया है एंड बहुत टाइमली डिसीजन लिया है, ये तो गजब का लिया है। तो आज एकदम फोर फ्रंट में है, एकदम दे हैव कम एज द मोस्ट deserving and most tallest leaders of the country today among opposition, of course. All right, interesting. You call it a bold and a beautiful step, and one that will put the Modi hai to mumkin hai slogan in jeopardy in 2024. Thank you very much, Mr. Shatrughan Sinha, for having spoken to us.